والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کڑپا کی مشہور 7 روڈ مسجد میں طاق راتوں کا خوبصورت انعقاد، علماء کرام کے پرمغز بیانات۔ رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے مسلمان اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی مغفرت کروا لیں۔ مودی کے وزیر نے حیدرآباد کو دہشت گردوں کے لیے بتایا سیف زون، تو مچ گیا ہنگامہ۔ بہار، موٹر سائیکل سوار کو ٹرک نے ماری ٹکر، زخمی حالت میں بیوی کو کیا ویڈیو کال اور توڑ دیا دم۔ عاشق نے معشوقہ کے بھائی پر چلائی گولی، پھر گھر والوں نے پکڑ کر ایسی کی پٹائی کہ چلی گئی جان۔ رسوئی گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ واپس لے حکومت، کانگریس کا بیان۔ مدھیہ پردیش قرض معافی کے بعد کانگریس حکومت نے دی کسانوں کو ایک اور بڑی راحت۔ خاتون IAS افسر نے کی گوڈسے کی تعریف، کانگریس نے کیا کارروائی کا مطالبہ۔ ٹرین کی بھیڑ نے لی 18 سالہ معصوم لڑکی کی جان، جنرل ڈبے میں سفر کا بھگتنا پڑا خمیازہ۔ اتر پردیش، ہردوئی اور لکھنؤ سمیت کئی علاقوں میں آندھی کے ساتھ ہو سکتی ہے بارش، الرٹ جاری۔ سونیا گاندھی کانگریس پارلیمانی بورڈ کی لیڈر منتخب، راہل بولے BJP کو ہرانے کے لیے ہم 52 لوگ ہی کافی۔ اسد الدین اویسی نے کہا 300 سیٹیں جیت کر ہندوستان میں منمانی نہیں کر سکیں گے مودی۔ افغانستان میں فضائی حملے میں 21 طالبان جنگجو ہلاک۔ مسلمانوں کے بیچ نفاق مسلم دشمنوں کے لیے منافع بخش ہوگا، ترک وزیر خارجہ کا بیان۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہمارا سلام، ہم آپ سب کی سلامتی کے دعا گو ہیں، صدر رجب طیب ایردوان کا بیان۔ برلن میں اسرائیل مخالف مظاہرہ بھی اور یہودیوں کے ساتھ ایک جہتی مظاہرہ بھی۔ ترکی صدر رجب طیب ایردوان کی شرکت سے ینی کاپی میں نماز تراویح کا انعقاد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے۔ ہندوتوا دہشت گردوں کے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے ویڈیوز وائرل ہو گئے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ پر ظالم فلسطینیوں نے دھاوا بول دیا ہے۔ امریکہ کے ایک میونسپل سینٹر میں جو ہے فائرنگ ہوئی ہے جس میں کئی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان سارے اور PUBG گیم کھیلتے کھیلتے ایک 16 سالہ مسلم نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ ساری تفصیلات آپ ہمارے پرائم ٹائم میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو ضرور دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ بہرکیف چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ پہلی خبر کڑپا سے ہے۔ کڑپا کی مشہور مسجد 7 روڈ مسجد میں طاق راتوں کا خوبصورت انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے علماء کرام نے شرکت کرتے ہوئے اپنے پرمغز بیانات سے یہاں کے عوام کو مستفید کرنے کی کوشش کی۔ مولانا داؤد باقی سمیت ان کے کئی ساتھیوں کی محنت سے یہاں پر کڑپا میں ہر سال یہاں کی مسجد 7 روڈ مسجد میں طاق راتوں میں بہترین انداز میں اجلاسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے علماء کرام کو دعوت دی جاتی ہے، جو علماء کرام کو سینکڑوں کی تعداد میں موجود عوام سے خطاب کر کے ان کو الگ الگ موضوعات پر خطاب کرتے ہیں۔ اس مرتبہ 27 کی شب کو ایڈیٹر سیدھی بات نے یہاں شرکت کرتے ہوئے یہاں سے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور رمضان مبارک کے مہینے میں شب قدر کے پیغام کو نوجوانوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں کے سامنے رمضان کے مہینے کی حقیقت کو رکھتے ہوئے شب قدر میں اور رمضان کے مہینے میں موبائل کا کس انداز میں غلط استعمال ہوتا ہے اور روزوں اور تراویح کو جس طرح چھوڑا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے دلوں پر ضرب لگانے کی کوشش کی، اور اس بات کو کوشش کی گئی کہ جو ہے نوجوان موبائل سے جتنا دوری اختیار کریں گے اتنا ہی ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو ہے موبائل ایک فتنے کے طور پر ابھر رہا ہے اور نوجوان نسل اس کی وجہ سے بگڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مولانا داؤد باقوی سمیت بہت سارے لوگوں نے شرکت کی تھی، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے 27ویں شب کو کڑپا کی مسجد 7 روڈ مسجد میں شرکت کرتے ہوئے بیانات سے مستفید ہوئے۔ یاد رہے کہ یہاں پر مغرب یہاں 3 بجے تک جو ہے بیانات کا سلسلہ چلتا ہے، اس کے بعد جو ہے کھانے کا انتظام یہاں کی کچھ نوجوانوں کی جانب سے سینکڑوں لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر قیام اللیل کے بعد جو پھر عوام فارغ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک بہترین انداز میں نظام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے مولانا داؤد باقی کو واقعی جو ہے مبارکبادی دینا ضروری ہے۔ بہرکیف ناظرین آج کی دوسری خبر ہے بنگلورو سے۔
اللہ तबारक व तआला के फजल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल से हमें रमज़ान मुबारक का अज़ीम महीना नसीब हुआ। अब रमज़ान मुबारक के बस कुछ दिन बाकी रह चुके हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ान मुबारक में दुनियादारी को छोड़कर उसकी कद्र करते हुए अपनी मग़फ़िरत का लवा लिया, और बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ान मुबारक के महीने में भी दुनियादारी और गुनाहों को नहीं छोड़ा और ना ही अपनी मग़फ़िरत करवा सके, और अब भी वो बदकिस्मत लोग दुनियावी कामों में मशगूल हैं जबकि रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम चल रहे हैं। मज़कूरा ख़यालात का इजहार मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया है। मौलाना ने कहा कि रमज़ान मुबारक खैर व बरकत, रहमत व मग़फ़िरत वाला महीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक तआला की रहमत और मग़फ़िरत की बारिश बरसती है। मौलाना ने फरमाया कि जिस शख्स का रमज़ान मुबारक जैसा अज़ीम महीना गफलत व मासी में गुजर जाए और उसकी बदआमालियों और कोताहियों की वजह से उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं हो सकी, ऐसी शख्स की तबाही व बर्बादी यकीनी है। दूसरी खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर ममलिकत बराए दाखिले की जिम्मेदारी संभालने के बाद हैदराबाद के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर दी जिसके बाद वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। दरअसल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बयान दे डाला कि हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए सेफ जोन यानी महफूज मकाम बन गया है। जब भी ये नईये के छापे पड़ते हैं तो इसका ताल्लुक हैदराबाद से निकलता है और इसके लिए तेलंगाना हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। किशन रेड्डी के इस बयान के फौरन बाद ऑल इंडिया मुजलिस-ए-मुत्तहिदुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी जमकर खबर ली है। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि 5 सालों में ऐसा कितनी बार हुआ है जब NIA, IB या RAW ने तहरीरी शक्ल में कहा हो कि हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए सेफ जोन बन रहा है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है जब इस तरह की बातें कही जाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में ये भी कहा कि गुज़श्ता 5 सालों से हैदराबाद में अमन व अमान है, कोई फ़िरक़ावाराना फसादात नहीं हुआ, मजहबी त्यौहार खुशगवार माहौल में मनाए जाते हैं। इस वक्त हैदराबाद एक तरक्की करता हुआ शहर है। रेड्डी ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तेलंगाना या हैदराबाद के साथ उनकी क्या दुश्मनी है? क्या उन्हें उसकी तरक्की अच्छी नहीं लग रही है? ओवैसी ने रेड्डी के हैदराबाद का बाशिंदा होने के बावजूद इस तरह के बयान देने पर हैरानी जाहिर की और कहा कि वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला का ऐसा कहना हैदराबाद के लिए उनकी नफरत को जाहिर करता है। अब खबर बिहार से। बिहार के बेगूसराय में एक दर्दनाक वाकया पेश आया है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। एक ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार राजा राम पंडित को जबरदस्त टक्कर मार दी जो कि अपने साले के श्राद्ध में शरीक होने ससुराल जा रहा था। बताया जाता है कि कौमी शाहराह टाइम्स पर कान में ईयरफोन लगाकर राजा राम तेज रफ्तार के साथ जा रहा था, तभी ट्रक ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि एक पैर कट गया और दूसरा भी टूट गया। इस जख्मी हालत में राजा राम ने अपनी बीवी को वीडियो कॉल किया और कहा कि देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। इस वीडियो कॉल के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। इसी हालत में उसे बेगूसराय वाक़ई अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे मुर्दा करार दे दिया गया है। आईनी शाहिदीन का कहना है कि ईयरफोन की वजह से राजा राम ने ट्रक की आवाज़ नहीं सुनी और हादसा सरजद हो गया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चलवाताल इलाके में इतवार की सुबह एक हिस्ट्री शीटर सूरजपाल ने अपनी माशूका के घर में घुसकर उसके भाई को गोली मार दी है। बाद में लड़की के घर वालों ने आशिक को पकड़कर इस कदर पिटाई की कि वो जख्मों की ताब ना लाकर हलाक हो गया है। पुलिस ज़राए ने इस वाक़े के ताल्लुक से बताया कि चलवाताल इलाके में शेरपुर चमराह की हिस्ट्री शीटर सूरजपाल गांव की ही एक लड़की से मोहब्बत करता था। सूरजपाल सुबह के वक्त अपनी माशूका से मिलने उसके लिए उसके घर गया था। इसी दौरान लड़की के भाई गौतम पाल ने दोनों को काबिल इतराज़ हालत में देख लिया। मुखालिफत करने पर हिस्ट्री शीटर सूरजपाल ने पिस्तौल से लड़की के भाई गौतम पाल को गोली मार दी। घर वालों ने जब देखा कि सूरजपाल की गोली से गौतम पाल जख्मी हो गया है तो उन्होंने सूरजपाल को पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी पिटाई के दौरान सूरजपाल की मौत वाक़ई हो गई। बादशाह इसकी खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने मौके से हिस्ट्री शीटर की पिस्तौल और कुछ जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि लड़की के भाई गौतम पाल को संगीन हालत में उसके वालिद और भाई लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले गए जहां उसका इलाज हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में मसरूफ हो गई है। इस वाक़े से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और लोग इस बात से भी हैरान हैं कि सूरजपाल ने अपनी माशूका के भाई पर गोली चला दी। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार के पहले दिन सब्सिडी और बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा करके
इजाफे को तशवीशनाक करार देते हुए अवामी मफाद में उसे वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के महकमे मुआसलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने मुसलसल चौथे महीने सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ाकर लोगों के सामने बहरान पैदा कर दिया है। हुकूमत को अवामी मफाद में फौरी तौर पर अपने फैसले पर असर-ए-नौ गौर करना चाहिए। सरजेवाला ने कहा कि लगातार चौथे महीने रसोई गैस के दामों में इजाफा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए कि बढ़े हुए रसोई गैस के दामों को वापस ले लें। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आते ही कांग्रेस की हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके कर्ज माफ किए थे और अब कांग्रेस की हुकूमत रियासत के किसानों को एक और बड़ी राहत देने जा रही है। इस बार कांग्रेस की हुकूमत एमपी के शोहरत याफ्ता मंदसूर गोलीबारी के बाद शुरू हुई तहरीक में किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने की तैयारी शुरू कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत किसानों को एक बड़ी राहत देने जा रही है, जिसके तहत जिन किसानों के खिलाफ बीजेपी हुकूमत में मंदसूर गोलीबारी के बाद केस दर्ज किए गए थे, कांग्रेस की हुकूमत उन सभी मुकदमों को वापस लेने का इरादा कर चुकी है और उसके लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने महाराष्ट्र केडर की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसर निधि चौधरी की जानिब से महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के खिलाफ वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस के मुआसलात महकमे के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने इतवार के रोज ट्वीट करके कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी की लीडर प्रज्ञा ठाकर, फिर पार्टी मेंबर असेंबली ओषा ठाकर और अब महाराष्ट्र से IAS अफसर निधि चौधरी ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे की तारीफ की है। वजीर आला फडणवीस को फौरी तौर पर IAS अफसर पर कार्रवाई करनी चाहिए। बापू के 150वें यौम पैदाइश पर बीजेपी गोडसे की सताइश आखिर क्यों कर रही है। अब खबर नई दिल्ली से। एक मजदूर बाप को ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर करना उस वक्त महंगा साबित हुआ जब उसकी 18 साल बेटी शिद्दत की गर्मी में जबरदस्त भीड़ का सामना नहीं कर सकी और दाई अजल को लब्बैक कह दिया। बताया जाता है कि राम प्रकाश अहरेवार दिल्ली में मजदूरी करते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ बांदा के लिए बजरे ट्रेन निकले थे। उनके साथ 2 बेटियां और एक बेटा भी सफर कर रहा था, लेकिन 18 साल सीता इस सफर की परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। मीडिया जराये के मुताबिक फैमिली दिल्ली से बांदा के लिए संपर्क क्रांति के जनरल डब्बे में सवार हुई थी। ये वाकया जुमा की रात का है। आईनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी और जब राम प्रकाश की फैमिली ट्रेन में सवार हुई थी तभी से सीता की तबीयत खराब होने लगी। कई बार उसने वालिद से ट्रेन से नीचे उतरने की बात भी कही, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन से नीचे उतरने में कामयाब नहीं हो सके। ट्रेन में सवार कुछ लोगों ने वाकये के ताल्लुक से बताया कि लड़की ट्रेन में एक बार बेहोश हुई थी और फिर उसे होश आया, लेकिन फिर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसका ट्रेन के अंदर दम घुटने लगा। घुटन की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गई। इस दरमियान ट्रेन गोलेरा और झांसी के दरमियान पहुंच गई। फिर जब ट्रेन झांसी में रुकी तो आनंद फानून में बेहोश लड़की को स्टेशन पर उतारा गया और बजरे एम्बुलेंस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही लड़की का इंतकाल हो गया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान के तकरीबन निस्फ हिस्से में इस वक्त शिद्दत गर्मी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी गर्म हवाएं चल रही हैं और रेड वार्निंग जारी किया जा चुका है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वो सिर्फ ज़रूरी काम से ही अपने घरों से निकलें। इस दरमियान उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी समेत कई इलाकों में आइंदा कुछ घंटों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे यूपी में मौसम कुछ ठंडा हो सकता है। महकमे मौसमियात ने इस ताल्लुक से यूपी के मुताल्लिका इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। तरक्की पसंद इत्तेहाद की सरबराह सोनिया गांधी को हफ्ते के रोज कांग्रेस पार्लिमानी बोर्ड का लीडर मुंतखब किया गया है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला ने ये इत्तला देते हुए बताया कि पार्टी के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट में होने वाली मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी को आम इत्तेफाक़ी राय से कांग्रेस पार्लिमानी बोर्ड का लीडर मुंतखब किया गया। ख्याल रहे कि सोनिया गांधी 16वीं लोकसभा में भी पार्लिमानी बोर्ड की लीडर थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने मुल्क के 12.25 करोड़ राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कांग्रेस पर एतमाद किया था। अब खबर हैदराबाद से। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 300 सीटें जीतकर हिंदुस्तान में मनमानी नहीं कर सकेंगे मोदी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली एनडीए की हुकूमत बनने के बाद हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म 300 सीटें जीतने के बाद हिंदुस्तान में मनमानी कर सकेंगे तो ये नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि आइन का हवाला देकर असदुद्दीन ओवैसी आपसे लड़ेगा, मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान को आबाद रखना है, हम हिंदुस्तान को आबाद रखेंगे। हम यहाँ पर बराबर के शहरी हैं, किराएदार नहीं हैं, शिरकतदार रहेंगे। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के फिजाई हमले में कम से कम 21 तालिबान जंगजू हलाक हो गए हैं। मकामी मीडिया ने फौज के हवाले से इस बात की इत्तला दी है। खामा प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि फौज ने फिजाई हमले गंजान आबादी वाले ज़िला कुर्राह बाग में पेश आया। तालिबान ने अभी तक फिजाई हमला और हलाकतों के सिलसिले में कोई तबसरा नहीं किया है। वाज़ेह है कि साल 2001 में इख्तिदार से बेदखल होने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। फौज भी अमेरिका के ताउन से मुसलसल तालिबान जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब खबर तुर्की से। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने फ़िलिस्तीन में तारीख़ को असर-ए-नौ कलमबंद किए जाने, इंसाफ पर इक़्तिसादी मफादात को बालातर रखने और जायज़ हैसियत और वक़ार को नज़रअंदाज किए जाने को कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर चावुशोगलू ने मक्का मुकर्रमा में सफ़ा महल में मुनक़िदा इस्लामी ताउन तंजीम के 14वें सरबराही इजलास में रुकन ममालिक के सरबराहान से खिताब किया। उनका कहना था कि वो आईसी के क़याम का मकसद होने वाले मसले अल-कुद्स को 50 बरस का अरसा बीतने के बावजूद ताहाल उसके मुस्तक़बिल के हवाले से पेचीदा मसाइल का सामना होने का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा को मसले फ़िलिस्तीन समेत हम सब के लिए इंतहाई तशवीशनाक मसाइल ज़ेर बहस होने के वक्त हमें एक पुख्ता इत्तेहाद की ज़रूरत है। चावुशोगलू ने इस तरह इशारा दिया कि मुसलमानों के बीच निफाक फ़िलिस्तीन पर कब्ज़े को जारी रखने का मकसद होने वालों के लिए मुनाफा बख्श साबित हुआ है। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की अपनी इस्तेहकाम, मुल्क की अमन अमान, डेमोक्रेसी और शहरियों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती की बदौलत अमन आश्ती का पयाम्बर है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में शब कद्र के हवाले से मुनक़िदा एक महफिल में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा, तुर्की और दुनिया भर के मुख्तलिफ गोशों में माह रमज़ान की फजीलतों से फैज़याब होने वाले तमाम तर इस्लामी भाइयों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। हम यहाँ पर शाम में बमबारी तले इफ्तारी करने वाले हमारे भाइयों, यमन में सूखी रोटी से भी महरूम मासूम बच्चों, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान और लीबिया में झड़पों तले इस मुक़द्दस माह को गुजारने पर मजबूर होने वाले मजलूमों, 70 बरस से एक आज़ाद वतन की हसरत में जलने वाले फ़िलिस्तीनी मुहाजिरीन के लिए दुआ गो हैं। उन्होंने ईद सईद से हमकिनारी की हद तक माह सियाम के रूहानी फैज़ और उसके अक़दार के ऐन मौजू ज़िंदगियाँ गुजारने की अहमियत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि तुर्क महकमे मजहबी उमूर के ज़ेर एहतिमाम इस महफिल में 3 लाख से ज़ायद अफराद बैक वक्त नमाज तरावीह अदा कर रहे हैं। अब खबर बर्लिन से। 1 जून के रोज़ बर्लिन में इसराइल मुखालिफ रैली में तकरीबन 1000 शुरका ने हिस्सा लिया। इस रैली का एहतिमाम एक ऐसे वक्त पर किया गया था जब जर्मनी में ये ख़दशात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के रुकन इस मुल्क में सामियत दुश्मन जज्बात में इजाफा होता जा रहा है। इस एहतजाजी रैली का एहतिमाम यौमुल क़ुद्स या यरूशलेम डे के मौके पर किया गया था और बाकायदा तौर पर इस इज्तिमा को फ़िलिस्तीन में एक मुनसिफाना अमन के लिए का उन्वान दिया गया था। ये रैली उन तमाम मुतालबात के बावजूद निकाली गई जिनमें कहा गया था कि जर्मन हुक्काम को इस मुजाहरे पर पाबंदी लगा देना चाहिए थी। ऐसे मुतालबात करने वाली अहम तरीन शख्सियात में जर्मनी में यहूदियों की मरकजी काउंसिल के सदर योसेफ शचिस्टर भी शामिल थे। इस रैली से कबल कई सरकर्दा जर्मन सियासतदानों ने, जिनमें वफाकी सदर फ्रांक वाल्टर शानाइनमायर के अलावा ख़ानदानी उमूर की वफाकी जर्मन वजीर फ्रांसिका गिफी भी शामिल थी, जर्मन अवाम से मुतालबा भी किया था कि वो मुल्क में बढ़ती हुई सामियत दुश्मनी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से ख़ानदानी उमूर की वफाकी वजीर गिफी ने बर्लिन से शाये होने वाले अखबार टागिश इश्बेगल को बताया, हम सबको सालिमियत दुश्मन इम्तियाजी रवैयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उनकी मुखालिफत करना होगी।
अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फतेह इस्तांबुल की 567वें सालाना याद के मौके पर तुर्की के महकमा मजहबी उमूर और दियानत वफ़ की तरफ से यनी कापी में मुनक़िदा नमाज तरावी में शिरकत की। तरावी से कबल इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन बल्दिया के महतर बैंड ने हमदिया तराने बजाए। प्रोग्राम में दरूद सलाम पढ़ा गया और तिलावत कुरान करीम की गई। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।